نہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے کہے لفظوں کو گونج اب بھی کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں وہ جو اس وقت سے ایک ہی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، تڑپ کر اٹھی، خود کو یقین دلاتے ہوئے بے ساختہ زبان لڑکھڑائی اور وہ بے دم سی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکن ایک وہ ہی تو ہے جو میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ دل کو خوش فہمی سے نکالنے میں بس چند ہی پل لگے تھے۔ کتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی میں۔ اس کی اصلیت جان کر بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ مائی گاڈ، میں اتنی احمق، اتنی کم عقل کس طرح ہو سکتی ہوں؟ کتنی آسانی سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا۔ اس بار اس کا دل اپنے بال نوچنے کو چاہا۔ واقعی اس نے سب کچھ اپنی رضامندی سے ہی تو کیا تھا۔ کوئی خبر، کوئی دباؤ نہ تھا۔ بہت آرام سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو وہ اس سے کہتا رہا۔ اس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتی رہی۔ پھر اب کس لیے اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی؟ تو پھر آج کے بعد زندگی میں پچھتاوے کے سوا باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کان پڑی آواز کا سننا بھی مشکل تھا، لیکن یہ اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا۔ ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجتے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے تھے۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاعت پہ سب ہی حیران ہوتے تھے۔ سامنے رکھے ڈرنکس ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سنوارے اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں رکھی تھی۔ میز پہ انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا جو دوسرے کاغذات کی نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس میں اس کی پچھلی ایک ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ دل ہی دل میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میز پر رکھ کر جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس کے رکھے کاغذوں کا دستہ نکال لیا جس پہ جعلی حروف سے اس کا نام لکھا تھا۔ نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کور کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پہ لگا کر انہیں ٹیبل کے اس کی فائل میں بالکل اس طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذات کو اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ ایسا کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیے، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں لگے گھڑیال نے 7:30 بجائے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی امیر اور شاہیان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیٹے اور بھانجی کو ناشتہ دے کر اب اس کی منتظر تھی۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صفیہ بیگم کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مدد کرتی تھیں۔ یہ جالے نظر نہیں آ رہی، اب تک ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پہ نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کی بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ جالے تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی، یونیورسٹی کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔
चची ने इसकी प्लेट और चाय का मग मेज़ पर रखते हुए इसे मतला किया। हाँ, लेकिन असाइनमेंट तो हमको भी जमा करवाना था। अखबार लिपेटकर मेज़ पर वापस रखते हुए इसने हैरत से पहले अपनी कलाई पर घड़ी को देखा। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस आ रहा हूँ। अरहम ने नाश्ते की प्लेट हाथ से परे की और अपनी फाइल उठाकर इन दोनों के पीछे ही चल दिया। इसकी भूख एकदम गायब हो गई थी। यावर अली खान साहब ने दोनों बेटों की तरबियत इस नहज पर की थी कि दोनों के दरमियान मोहब्बत और खलूस शामिल थे। यही वजह थी कि बरसों से न सिर्फ कारोबार मुश्तरका था, बल्कि घर में भी दोनों ख़ानदान निहायत इत्तेफाक से रहते, एक दूसरे पे इंसार करते थे और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। घर में कायम अमन और सुकून की फ़िज़ा के पूरी ख़ानदान में मिसाल दी जाती थी। अलबत्ता अरहम और जाले इस पैमाने पर पूरे ना उतरते। इस पे सितम शुरू से एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर पढ़ते थे। यही वजह के दोनों में भी कभी नहीं बनी थी। अरहम की तारीफ सुन सुनकर जाले को अरहम से खामखा की चिढ़ हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि घर में सब लोग इन रोज़ों की रोज़ की नोक झोंक से इस कदर आदी हो चुके थे कि अब कोई सिरे से परवाह ही नहीं करता था, बल्कि जिस दिन इनमें जंगो जदल ना हो सबको परेशानी लाहक हो जाती। इन सब बातों के बावजूद अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम के ख़ानदान के दरमियान से सुई गुजरना भी नामुमकिन था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जाले ने सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए वो आज इतनी सुबह ख्वार होने यूनिवर्सिटी आई थी, यानी असाइनमेंट जमा करवाना। अरहम की असाइनमेंट फाइल पे अपने नाम का लेबल लगाकर इसने सुबह आते ही प्रोफेसर को दे दी थी और इनसे अपनी जिम्मेदारी और काबिलियत पे ढेरों दाद भी वसूल कर चुकी थी। अब तक तो इसे पता चल चुका होगा ना? सीमा ने सवाल किया। पता चल जाता तो इसकी कॉल आ जाती। अभी तक राब्ता ना करने का मतलब है कि इसको फाइल चेक नहीं की। वो अरहम से बाखूबी वाकिफ़ थी। इसे मालूम था कि अरहम कभी अपने लिखे को दोबारा चेक नहीं करता, क्योंकि वो इसे काबिल बनाने में इतनी तहकीक करता कि तकमील के बाद किसी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वैसे तुमने बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। महानूर को बहरहाल इसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। वो इसका भी हम जमात था और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में इसकी मदद करता रहता था। जाले की दोस्त होने के बावजूद महानूर की हमदर्दियाँ अरहम के साथ थी। जाले का बदला माय डियर, इसने जो मेरे साथ किया मैंने वो इसके साथ कर दिया। इसकी वजह से मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ। अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए इसने जवाब दिया। जाले, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त था असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए। तुम चाहती तो तसल्ली से अपना काम मुकम्मल कर सकती थी। पिछले हफ्ते वो यूनिवर्सिटी अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सकती और इसी दौरान प्रोफेसर ने इनके फाइनल असाइनमेंट सेमेस्टर का जमा करने का ऐलान कर दिया था। और हमने इसे मौजू ही गलत बताया और जाले इसी मौजू पर घर बैठे काम करती रही। वो तो फ़कत 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी आने के बाद इसको हकीकत का मालूम हुआ। अरहम बखूबी जानता था कि जाले गाए बगाए इसके कमरे की तलाशी लेती है, इसलिए वो चीज़ें जिन्हें जाले से छुपाना मकसूद होता इन्हें हमेशा ताले में ही रखता था, जैसे इसकी डायरी जिससे वो बाकायदगी से लिखने का आदी था। लेकिन अरहम की एहतियात के सबब आज तक वो इसके हाथ ना लग सकी। अरहम के तो वहमो गुमान में ना था कि इसके साथ ये होने वाला है, इसलिए जब प्रोफेसर ने इसे क्लास से पहले ऑफिस में आने को कहा तो वो एहसास तफक्कुर से इनके पास पहुंचा और इनका लायक तालिब इल्म था। इसे यकीन था कि इंटर्नशिप वगैरह में मदद के लिए या फिर किसी अहम मशवरे के लिए दफ्तर में बुलाया होगा, लेकिन वहां पहुंचते ही जो बम इसके सर पर फटा, इसकी गूंज इतनी तबाहकुन थी कि वो सुन बैठा का बैठा रह गया। लेकिन सर, मार्कशीट पर अपने नाम के साथ बड़ा सा ज़ीरो देखकर इसका दिल दहल गया। तुम मेरे इंतहाई लायक स्टूडेंट हो, मेहनती हो। तुम्हारे रिज़ल्ट मैंने क्लास में अनाउंस नहीं किया, लेकिन सीरियसली तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने असाइनमेंट को कॉपी नहीं किया। बहरहाल वो सच्चा था, इसलिए 2 टोक इस इल्ज़ाम को कबूल करने से इनकारी था। अब क्या कहोगे कि तुमने असाइनमेंट कॉपी नहीं की? लेकिन सर, ये मेरी फ़ाइल नहीं है। इस बात की तो मैं पहली लाइन से ही तस्दीक कर सकता हूँ। उन्होंने हाथ उठाकर इसे जाने को कहा। तुम अब जा सकते हो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना।
ये लास्ट सेमेस्टर्स है और तुम्हारे लिए बहुत अहम। कोशिश करो कि संजीदगी बरकरार रखो, वरना तुम्हें नुकसान होगा। जी सर। वो अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ते रुक गया। सर, क्या याले का असाइनमेंट देख सकता हूँ? अगर याले इसकी इजाज़त दे तो। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों कज़न हैं। इसके बावजूद किसी और की असाइनमेंट की फ़ाइल दिखाना इन्हें दुरुस्त नहीं लगा, इसलिए साफ मना कर दिया। सर, इसके कितने मार्क्स हैं? 19। अरहम के पास अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि याले है। मटर पुलाव के मटर छीलती सफ़िया बेगम अपनी देवरानी अतिया बेगम के सामने बैठी लाउबाली तबीयत से परेशान थी। इसी वक्त में सफ़िया बेगम के बड़े भाई का अमेरिका से फ़ोन आ गया, जो कि अपने बच्चों की नाअहली का रोना रो रहे थे। आखिर कमाल को एक तरकीब सोची कि क्यों ना अपनी बहन के हाँ रिश्ता डाल दिया जाए। जाले के लिए उन्होंने अपने बेटे शमीम का रिश्ता दिया, जबकि अपनी छोटी बेटी मुमताज़ के लिए भांजे अरहम को दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अंधा क्या चाहिए दोनों आंखें। सफ़िया और अतिया को कमाल की बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ये बात हम अपने मर्दों के सामने रखेंगी। कोई भी इस बात के लिए इनकारी ना था। सभी को ये रिश्ते बहुत माकूल लगे और उधर कमाल ने पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ ली। घर में अचानक खुशी और हंगामा सर उठाने लगा। अरहम के कमरे में जाले दौड़ी चली आई कि शमीम भला कैसे किसी मर्द का नाम हो सकता है? तुम्हें नाम से क्या है? वो तो खुद अपना सर घुटनों में दिए परेशान बैठा था, क्योंकि कल से इसे अम्मा ने शेरवानी सिलवाने का हुक्म दे दिया था। जाले ने इसे मशवरा दिया कि क्या मसला है, तुम रेडीमेड खरीद लो। इसका दिल चाहा कि अपना सर फाड़ ले। किसी तरह इससे मेरी किसी दिल की बात का कोई असर ही नहीं है, इसलिए इसे कहने लगा कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इधर अरहम ने शमीम को फ़ोन किया और कहा कि यार ये शादियाँ नहीं हो सकती। शमीम ने मुश्किल निगाहों से अपने स्मार्टफोन को देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो तो फिर मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरे सोचने समझने की तमाम सहलियत बिल्कुल सलब हो चुकी है। शमीम इसे सोचते हुए एक तरकीब बताने लगा। अरहम को लगा यह काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जाले को मनाने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। अरहम की बात सुनकर वो सीख पा हो गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें शमीम से जान छुड़ानी है तो फिर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरहम ने इसे ये नहीं बताया कि शमीम भी इससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मशवरा भी इसी शमीम ने ही दिया था। लेकिन अब महानूर का क्या होगा? जाले को तफ्शीश हुई, लेकिन वो सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अपने गुस्से पर काबू पाता रहा। इसकी फ़िक्र तुम ना करो। ज़रूरी ये है कि हम लोग घर में सबको बताएं कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। हस्बे आदत जाले चुप ना रह सकी और बोली, मोहब्बत और तुमसे? मुझे तो सोच कर वहशत हो रही है, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। घर में जिसने सुना वो ये सुनकर हैरान रह गया कि हर वक्त की गोला बारूद करने वाली फ़ौजें आज एक दूसरे से शादी करने के लिए कैसे तैयार हैं। जिस पर अतिया और सफ़िया बेगम को दिल से इत्मीनान हो गया कि दोनों बच्चे घर पर ही रहेंगे। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। जाले ने जाकर अरहम के कमरे पर धावा बोल दिया कि तुम कोई और तरीका अपना लेते, लेकिन कम अज़ कम निकाह तो रुकवाते। जिस पर वो फ़ौरन बोला कि अगर तुम्हें शमीम से शादी करनी थी तो ठीक है, मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन ना था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की मर्ज़ी के बगैर रुखसती तो कोई भी नहीं करवा सकता, इसलिए बेफिक्र रहो, इससे पहले ये मामला ख़त्म हो जाएगा। घर में निकाह की तैयारियां अरूज पर थी। जाले की मर्जी ना होने के बावजूद ताई जी की ख्वाहिश पर इसे सुर्ख रंग का गरारा पहनना पड़ा और हमको मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाए मंदिर से गायब हो गया। मजबूरन इसे हथियार डालना पड़े, लेकिन जब निकाह के वक्त दोस्तों के हमरा बड़े ठाठ से डिज़ाइन शेरवानी पहने अरहम होटल पहुंचा तो दिल इसकी जान लेने को चाहा, क्योंकि इसके अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह ड्रामा है और ये मजबूरी का निकाह है। दिल चाहा सबके सामने पोल खोल दे, लेकिन ना तो मौका था और ना ही दस्तूर, बल्कि सब्र के घूंट पीने के अलावा वो कुछ ना कर सकी और आंसू बहाते इसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद वो अभी ब्राइडल रूम में ही बैठी थी कि अरहम की बहन दौड़ती हुई आई और एक बम फोड़ दिया। अरहम भाई और इनके दोस्त रुखसती की बात कर रहे हैं।
वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसे यकीन हुआ कि इसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हो गई है जिसकी इसे खबर नहीं। बस अब आप अपने घर नहीं बल्कि हमारे पोर्शन में आएंगी। आखिर ये सब क्या है? इसके साथ इतना बड़ा धोखा अरहम कैसे कर सकता है? घर में किसी के पास इसका एहतजाज सुनने के लिए वक्त न था। इसे खूबसूरती से सजी स्टेज पर बिठा दिया गया। अरहम इसके साथ बैठा निहायत खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था और वो बेबसी की तस्वीर बनी थी। वापसी पर इसे जब अरहम के कमरे में पहुंचाया गया तो खूबसूरत फूलों से पूरा कमरा सजा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गई कि यह सब कुछ पहले से अरहम के प्लान में शामिल था। जैसे ही अरहम कमरे में दाखिल हुआ, इसने इसे झंझोड़ कर रख दिया। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? पहले निकाह और अचानक रुखसती। तुमने कहा था कि तुम निकाह ख़त्म कर दोगे। इसने अपनी तशवीश को सवालात की सूरत में डाल दिया, जिस पर वो प्यार से कहने लगा कि झूठ बोला था, लेकिन मुझे पता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। झूठ क्या मतलब? अरहम, ये सब तुमने मुझसे असाइनमेंट का बदला लिया है? जिस पर वो सर पकड़कर बैठ गया कि यार, असाइनमेंट की बात दरमियान में कहाँ से आ गई। लेकिन याले को यकीन ना आ रहा था कि इस बदतरीन इंतकाम को लेने के पीछे इसने इसकी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया और इसके एतबार का खून किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर अरहम बोला कि तुम एक इंतहाई अहमक और जज्बाती लड़की हो। यही वजह है कि कभी सोच समझकर बात किया करो। लेकिन याले कहाँ इसके बातों में आने वाली थी। बोली कि तुम किसी धोखे में मत रहना, मैं इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगी। तुम मुझे घर में कैद करके खुद महानूर के साथ इश्क लड़वाओगे। मैं अभी घर वालों को जाकर तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। अरहम ने इसे खींचकर वापस बिठाया कि तुम नहीं, ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारे और मेरे दरमियान महानूर कहाँ से घूम घर आ जाती है? तुम महानूर से मोहब्बत करते हो और वो मोहब्बत नामे जो तुम छुपाकर डायरी में लिखा करते थे, वो मुसलसल अब रो रही थी। मैंने ये तुमसे कहा था याले, मैंने आज तक महानूर या किसी भी लड़की से मोहब्बत की हामी नहीं भरी। अरहम मजबूर होकर इसे डायरी दिखाने के लिए उठा जिसमें इसने आज तक अपनी मोहब्बत को कैद रखा था, और वह वाहिद इस बात का गवाह शमीम था। वो आज तक ये ना समझ सकी थी कि शमीम इस रिश्ते पर इतना खुश क्यों है, लेकिन इसे ये यकीन ना आया कि वो नाम किसी और का नहीं, डायरी में इसका दर्ज था। वो कहने लगी कि आज तक आपने मुझसे ये बात छुपाई, मुझे हमेशा तंग किया करते थे। जिस पर अरहम ने जवाब दिया कि मैं उस वक्त तुम्हें मासूमियत और मोहब्बत से देखा करता था, जब तुम मेरी बातों पर चिढ़ती थी और भाग भाग कर मेरी शिकायतें ताया अब्बा के पास जाकर लगाती थी, और मुझे तुम्हारी मासूमियत पर इतना प्यार आता था। वो शरारती नज़रों से याले को देखने लगा। ओह मेरे अल्लाह, क्या हो जाता अगर तुम ये सब सीधे रास्ते से कर लेते, अगर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैं कुछ उल्टा सीधा कर लेती। मोहब्बत और दिल का हाल इसलिए नहीं बताया कि तुम पता नहीं यकीन करती हो या नहीं, और ड्रामा रचाने से पहले मैंने बड़े अब्बा को सब कुछ बता चुका था और इनसे सब कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता था। इंकशाफ पर इंकशाफ हो रहे थे, यानी इस निकाह और रुखसती वाले खेल में बड़े अब्बा तुम्हारे साथ शामिल हैं। जी हाँ, अरहम ने सर हिलाकर जवाब दिया। कसम से दिल तो कर रहा है कि तुम्हारा सर फोड़ डालूं, लेकिन अरहम ने हाथ बढ़ाकर अलार्म क्लॉक जाले से ले लिया और खूबसूरत सी अंगूठी अपनी जेब से निकालकर इसकी अंगूठी पर रख दी। सच तो यह है कि याले की मोहब्बत नहीं, बंदे को इश्क है तुमसे, और इश्क मजनू फरियाद सबको ही पीछे छोड़ डाला है। अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर दी है। इसने शरारत से याले की तरफ देखा। कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू, अरहम की मोहब्बत के रंग हावी हो रहे थे। याले मुस्कुराते हुए शर्मा कर सर झुका लिया।